નમસ્કાર, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતના ખાસ કાર્યક્રમ કરંટ અફેર્સમાં હું જયેશ સોની આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ લવ જેહાદના વધી રહેલા મામલાઓ વિશે. જી બિલકુલ, ગુજરાત સહિત સુરતમાં લવ જેહાદના મામલાઓમાં ખૂબ જ ચિંતાજનક રીતે વધારો નોંધાઈ રહ્યો છે. અને આ જે કંઈ પણ લવ જેહાદના મામલા સામે આવી રહ્યા છે એ પૂર્વ યોજિત એક ષડયંત્ર રચીને હિન્દુ યુવતીઓ સાથે લવ જેહાદના મામલા બનતા જતા દેખાઈ રહ્યા છે. કેટલાક વિધર્મી યુવકો દ્વારા ટાર્ગેટ કરીને હિન્દુ યુવતીઓને અને ખાસ કરીને સગીર વયની યુવતીઓને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. અને એના જ ભાગરૂપે કેટલાક કિસ્સાઓમાં સગીર યુવતીઓની સાથે થયેલા દુષ્કર્મ જેવા મામલા પણ પોલીસ ચોપડે નોંધાઈ ચૂક્યા છે. જ્યારે કે કેટલાક મામલાઓમાં હજી સુધી આરોપીઓ પકડાયા નથી અને પોલીસ ચોપડે પણ ઘણી બાબતોમાં નોંધ થતી નથી. આ જ સમગ્ર મામલે હવે હિન્દુ સંગઠનોમાં જે રોષ છે એ દેખાઈ રહ્યો છે અને આ રોષ હવે સપાટી ઉપર આવી રહ્યો છે. ખાસ કરીને હિન્દુ સંગઠનો હવે પિકેટિંગ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. જી બિલકુલ, પાર્ક, મોલ, સિનેમાઘરો અને એકાંત સ્થળોમાં હવે હિન્દુ સંગઠનો દ્વારા નજર રાખવાનું શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે. અને આ તમામ મામલામાં હવે જ્યાં પણ વિધર્મી દ્વારા હિન્દુ યુવતીઓ સાથે અગર કોઈ પણ ચેનચાળા કરતું દેખાય છે તો આવા લોકોને પકડીને પોલીસને હવાલે કરવામાં આવી રહ્યા છે. આવા કેટલાક કિસ્સાઓ સુરતમાં નોંધાઈ ચૂક્યા છે અને અન્ય જગ્યાઓએ પણ આવા કિસ્સાઓ બનવા પામ્યા છે. જ્યારે પણ કોઈ આવો કિસ્સો જાહેરમાં આવે છે ત્યારે હિન્દુ સંગઠનો સક્રિય રૂપે બહાર આવીને આ યુવતીને બચાવવા માટેના પ્રયાસો હાથ ધરે છે. અને હાલમાં જ આવો કિસ્સો સુરતમાં પણ સામે આવ્યો છે, જેમાં એક પાર્કની અંદર 4 વિધર્મીઓ દ્વારા એક હિન્દુ સગીર યુવતી સાથે કરી રહેલા અશ્લીલ ચેનચાળાને ધ્યાન પર આવતા આ સમગ્ર મામલો પોલીસ સ્ટેશને પહોંચ્યો હતો અને ત્યારબાદ યુવતીના પિતા દ્વારા આ મામલે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે અને 2 વિધર્મીઓની ધરપકડ પણ થઈ છે. આ સમગ્ર મામલામાં હવે હિન્દુ સંગઠનો દ્વારા રોષ વ્યાપી ચૂક્યો છે અને તમામ જે વિભાગો છે એને તાકીદ કરવામાં આવી છે અને આવા મામલાઓમાં તત્કાલ ધોરણે કાર્યવાહી કરવા માટેની માંગ પણ કરવામાં આવી છે. સાથે સાથે હિન્દુ સંગઠનો દ્વારા સંગઠિત થઈ અને સંભવિત જગ્યાઓ ઉપર વોચ રાખવાનું શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે. આ જે સમગ્ર મામલે આપણે આજે ચર્ચા કરીશું અને આગળની જે કંઈ પણ બાબત છે એ વિશે આપણે વાત કરીશું. પણ હાલ અત્યારે સુરતમાં બનેલા જે લવ જેહાદના કિસ્સા છે એના ઉપર આપણે ચર્ચા કરીશું. આપણી સાથે આજે આજ લવ જેહાદના મામલા બાબતે चर्चा करवा माटे बजरंग सेना ना राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है और साथ में प्रतिभा झा जो कि बजरंग सेना सूरत शहर महिला मोर्चा के आश्रयदाता है. हम उनसे बात करते हैं. सबसे पहले अमित जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि जिस तरह से ये लव जिहाद के किस्से सामने आ रहे हैं और खास करके देखा जाता है कि एक षड्यंत्र रचने के बाद विधर्मी युवकों द्वारा हिंदू सगीर जो बालिकाएं होती है उसको निशान बनाया जाता है. क्या कहेंगे और किस तरह से आपकी मूवमेंट चलेगी आगे? लगातार अभी 2 दिन पहले का मामला है. गुजरात के क्षेत्र में नमाज पढ़ा गया, वहां पे हिंदू युवतियों को पार्क में बैठाकर लगातार ऐसी घटनाएं चल रही हैं. ये घटना देश भर में चल रही है. हमारे
द्वारा जन जागरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, लेकिन सरकार को इस पर एक कड़ा कानून लाने की आवश्यकता है। ये एक षड्यंत्र के तहत बहुत बड़े पैमाने पर ये लगभग 15-20 सालों से ये सोचा समझा साजिश किया गया था, जिसका टारगेट है कि हिंदू युवतियों को जबरन धर्मांतरण करा के या किसी भी माध्यम से धर्मांतरण करा के उनको लव जिहाद में फंसाकर उनको एक तो व्यापार कराया जाता है, उनको देह व्यापार में ठेला जाता है, या उनके ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन के भी कई मामले पकड़े गए हैं। देश भर में हमारे संगठन द्वारा कई ऐसे मामले हुए हैं। अभी तक 50 से ज्यादा मामलों में हम लोगों ने संज्ञान लिया है। इसके लिए एक क्या है कि एक बड़ी मुहिम चलानी पड़ेगी। इसके लिए इस माध्यम से नहीं होगा कि द केरला स्टोरी बनने से नहीं होगा। ये घर घर में हम लोगों को और समाज के आप न्यूज चैनल के माध्यमों से, साथ में सरकार इस पे एक अच्छी कार्रवाई करे, सुनिश्चित करे कि देश में ये जो एक षड्यंत्र चल रहा है, दुनिया के कई देशों में कई सारे षड्यंत्र चलते हैं। वहां अगर इजराइल के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचता है इस तरह की उसकी सांस्कृतिक के खिलाफ, तो तुरंत में वो कार्रवाई करता है। वो किसी भी दुश्मन देश या किसी भी दुश्मन के घर में घुसकर इतनी गोलियां बरसाता है कि उसके होश ठिकाने आ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ देश में विधर्मी कई सारे जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं वो लगातार कार्यरत है। अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज में मैं देख रहा था कि एक उत्तर प्रदेश का लड़का जो 5 निकाह शादियां कर चुका है, साथ में अभी छठा भी कर रहा है, और साथ में कह रहा है कि अगर छठा उसको नहीं उठाएंगे, जिसमें 5 में 4 हिंदू युवतियां हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह का षड्यंत्र है। ये लगातार लड़के लिया था पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, इस स्ट्रेटजी के तहत यह कार्यक्रम चल रहा है इनका। ये बहुत सारी घटनाएं हैं जिसके बारे में आप सब जानते हैं, और हम लोग लगातार, हम लोगों को ये चाहिए होगा कि सरकार और साथ में समाज खुद एक्टिव होगा, तभी होगा। लोगों को अपने घरों में बात करनी होगी खुल के, तब जाके इन चीजों के ऊपर रोक लग पाएगी। लगातार पार्कों में, बाकी जगहों में, ऐसे कई जगह हमें लोगों को टारगेट करके इन चीजों को रोकना होगा। बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, ये बहुत ही संगीन मामले सामने आ रहे हैं। हमारे साथ प्रतिभा झा जी भी है, हम उनसे भी बात करते हैं। प्रतिभा जी, जिस तरह से एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, रोकने के लिए आपके हिसाब से क्या प्रयास होने चाहिए? संगठन तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रहा है, लेकिन समाज के द्वारा जो जागृति का जो अभियान चलाने की बात अभी जो अमित गुप्ता जी भी बता रहे थे, तो क्या होना चाहिए? किस तरह का प्रोग्राम समाज के बीच में जाके होना चाहिए ताकि ऐसी जो घटनाएं हैं वो हम रोक सके? जी, अभी जैसा कि अमित जी ने कहा कि बहुत सारे मतलब हमारा संगठन और बहुत सारे लोग मिलके, सामाजिक संगठन मिलके ये कोशिश कर रहे हैं कि इनके इस षड्यंत्र को रोका जाए। उसी कड़ी में शामिल मुझे लगता है कि हमारे परिवारों में, जो हिंदू परिवारों में जो संस्कार देने की पद्धति है, वो संस्कार अब गायब हो गए हैं। मतलब माँ बाप या परिवार वाले बेटियों को या बच्चों को, बेटे भी शामिल हैं उसमें, तो बस इतना समझते हैं कि हमने उनको अच्छा खाना दे दिया, अच्छा कपड़ा दे दिया, अच्छा शिक्षा दे दी, बस हो गया। इससे काम नहीं चलेगा। हमारी धर्म और संस्कृति के बारे में हमें बताना पड़ेगा, परिवारों में इस चीज को बताना पड़ेगा, और बहुत मजबूती से बताना पड़ेगा कि हम हिंदू हैं, हम सहन करते हैं, हम सबको अपने में समा लेते हैं, समावेश कर लेते हैं। परंतु अगर किसी की नियत खराब है, बदनीयत, और किसी की नहीं, मैं स्पष्ट शब्दों में बोलती हूँ, अब ये किसी से ना तो देश में ये छुपा हुआ है और ना ही दुनिया में इनके कारनामे छुपे हुए हैं। इसलिए स्पष्ट और मुखर होकर बोलने की जरूरत है, आवश्यकता है कि इनका विरोध किया जाए। ये जहां भी कुछ गलत करें, गलत करना ही इनका सीधा कॉन्सेप्ट है कि योजना के तहत ये जगह जगह पब्लिक जो जगह होती है उस पे जाके ये नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर कहीं भी लड़कियों को फंसाना,
पेड कार्यक्रम रहता है इनका पूरा। तो इस चीज को रोकने के लिए सरकार से तो मेरी हम लोगों की एक वो चल ही रही है कि भाई आप कोई एक ऐसा कानून बनाइए जिससे कि इन लोगों को इस तरह से रोका जाए। पर इसके साथ साथ मैं कहती हूँ कि हमारे जो हिंदूवादी संगठन है, हमारा हिंदू समाज जो है, वो सामने आए और आचरण के साथ साथ संस्कारों के साथ साथ इनका बाइकआउट भी करना चाहिए सामाजिक तरीके से। ये कहीं भी शुरू कर देते हैं मटन की दुकान लगाना, कहीं भी इनको इस तरह से मोबाइल की दुकान लगाकर इनका जहां भी ये जो भी धंधा शुरू करते हैं या बिजनेस शुरू करते हैं वो तो दिखाने का होता है, दरअसल उसके पीछे इनका लव जिहाद का, लैंड जिहाद का और जितने भी अभी तो एक नया जिहाद आ गया भाई, स्त्री जिहाद, कि भाई स्प्रेयर रखा हुआ है, वो स्प्रेयर से स्त्री कर रहा है, वो स्त्री कर रहा है तो स्प्रेयर से उस पे पानी नहीं डाल रहा है, मुंह में पानी भर के और फिर ऐसे कपड़ों पे थूक रहा है और उसके बाद में प्रेस कर रहा है, स्त्री कर रहा है। तो इन लोगों ने वही बात है कि इनका सीधा मंतव्य ये है कि फिर से इन्हें जैसे तलवार के दम पे इस्लाम को बढ़ाया था और आज फिर वो पाकिस्तान लेने के बाद धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर इन्होंने पाकिस्तान ले लिया है और उसके बाद अब ये कहते हैं कि हिंदुस्तान भी हमारा है और हंस के लेंगे हिंदुस्तान। वो इस चीज को भूल रहे हैं कि हिंदू के सहन करने की एक लिमिट होती है, उसके बाद तुम तो क्या, ये तो हंस के लेने वाले तो क्या, तुम्हारे बाप दादी जो बाबर औरंगजेब आए थे ना, उनकी भी ऐसी की तैसी करके रखी है। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि हमारे साथ साथ हमारी सरकार का भी कर्तव्य बनता है, परिवारों का भी कर्तव्य बनता है और हमारे जो स्थानीय प्रशासन है उसका बहुत ये कर्तव्य बनता है कि इनकी जो अनर्गल चीजें हैं, कहीं भी नमाज पढ़ना, कहीं भी दुकान खोल लेना और पार्कों में हिंदू लड़कियों के साथ स्कूल कॉलेजेस में जो ये जिस तरह का फंसाने का कार्यक्रम करते हैं पेड होके, ये सारा बंद होना चाहिए। ये हमारी सरकार से विनती है और हम सभी इस कार्य में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल प्रतिभा जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पेड इनका जरा कंसेप्ट होता है, क्या सपोर्ट मिलता है इनको, किस तरह का सपोर्ट रहता है, जबकि इन लोगों की ये इतनी ज्यादा हिम्मत बढ़ जाती है और ये ऐसा भी देखा गया है कि ये इतने कोई अच्छे प्रोफाइल से नहीं होते हैं, बेकार से जो लड़के होते हैं विधर्मी, जिनके पास और कोई काम धंधा नहीं है, ऐसे लोग इस तरह की हरकतों में ज्यादा लिप्त रहते हैं और इनको बैक साइड से सपोर्ट मिलता है। किस तरह का, किसका सपोर्ट होता है इनको कि ये लोग ज्यादा बढ़ चढ़ कर ये लव जिहाद जैसे कार्य में जुट जाते हैं? जी, इनका क्या होता है, पहले तो आप देखिए कि ऐसा आपने जो कहा कि ये जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं और या ये जो अच्छे बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि ये कितने भी अच्छे बैकग्राउंड से होंगे, आपने उदाहरण देखे हैं पहले समय में, पहले क्या अभी भी, कि ये किसी भी अच्छे पद पे हो, चाहे ये क्या बोलते हैं प्रोफेसर हो, चाहे ये वैज्ञानिक हो, चाहे ये किसी भी अच्छे प्रशासनिक पद पे हो, सरकारी पद पे हो, इनका ये सिर्फ ये इंसान अपने को नहीं महसूस करते, ये उस पद के लिए अपने को उत्तरदायी महसूस नहीं करते, ये सिर्फ एक ही एजेंडा चलाते हैं, मुसलमान मुसलमान और सिर्फ मुसलमान। ये न्यायप्रिय नहीं होते। और बैक सपोर्ट की बात मैं करूं आपको, तो अगर बैक सपोर्ट इन्हें मुसलमानों का करना होता तो ये आज मुसलमान जो हिंदुस्तान में गली कुचों में और बुरी स्थिति में रहते हैं, आज सभी मुसलमान बहुत अच्छे और पैसे वाले होते, पढ़े लिखे होते, परंतु अरब कंट्री से जो मदरसे में छुपा जो पैसा आता है, वो सारा पैसा इन लड़कों को दिया जाता है, जिनसे ये कहा जाता है कि आप लड़कियां फंसाओ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जो बहुत जेन्युइन है, जिनमें ये पूरा लड़का स्वीकार कर रहा है कि मुझे ना मदरसे से पैसे मिलते हैं, ₹1,000 मिलता है लड़की फंसाओ, ₹1,00,000 मिलता है वो ब्राह्मण की लड़की फंसाओ, पैसे वाली फंसाओ, लड़की फंसाओ, उसे प्रेग्नेंट करो, इसके लिए उनके लड़कों को, ये मुस्लिम जो है लड़के, उनको पैसे मिलते हैं। बाकायदा इनका पूरी लिंक है, इनका पूरा एक वो चलता है
स्कैंडल चलता है कि भाई हमको ये करना है। अब ये सिर्फ ये खुद भी बहुत बच्चे पैदा करते हैं जो आज देश की समस्या बने हुए हैं, और इन्हें देश से कुछ लेना देना नहीं है, जब तब भी नहीं लेना देना है, जबकि ये धर्म के आधार पे एक देश ले चुके हैं, देश का बंटवारा करके एक हिस्सा ले चुके हैं, और आज वो किस स्थिति में है, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ यही मानते हैं कि जनसंख्या बढ़ाओ, अपने बच्चे पैदा करके बढ़ाओ। जैसे इन्होंने मुस्लिम बहनों को सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन बना के रखा है, इससे भी इनका पेट नहीं भरता, तो ये दूसरे धर्म हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को, महिलाओं को बरगला के और फिर इन्हें जनसंख्या बढ़ानी है, और पूरे देश के, पूरी दुनिया में इन्हें वो कब्जा करना है इस्लाम का। तो इनको मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आपकी जो टेरर फंडिंग चलती है ना, इसे भी जिहाद फंडिंग ही बोलते हैं, आपकी कितनी भी फंडिंग चलती है जिससे आप ये सारा अपना फैला रहे हो, कार्यक्रम में बना रहे हो, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। जिस दिन हिंदू जाग जाएगा, हिंदू की लिमिट तक सहन कर रहा है, जिस दिन हिंदू जाग जाएगा उस दिन तुम्हारे पते नहीं चलेंगे कि तुम कहाँ गए। वो समय अब गया जब गांधी हुआ करते थे, जो जीतने के वो आधा आधा हिस्सा करने के बाद भी मुसलमानों को यहाँ रख लिया था, और उसके बाद भी 55,000 करोड़ रुपए दिलवाए थे पाकिस्तान को। वो टाइम गया। मैं सचेत भी करना चाहती हूँ कि अगर चाहते हो कि हिंदुस्तान में रहो, और हिंदुस्तान में मुसलमान जितनी अच्छी स्थिति से है, ऐसा किसी भी कंट्री में नहीं है, मुस्लिम कंट्रीज में भी नहीं है, तो आप इसका, मैं मुसलमानों से कहती हूँ कि आप इसका आदर कीजिए और सम्मान कीजिए, और यहाँ चैन से रहिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमारे तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में भी सभी शांति से रहें। हमारे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में सिर्फ इतना ही है कि जो पत्थरबाजी होती है ना हर हिंदू त्योहार पे, वो बंद हो जाए, बाकी सभी लोग अपने धर्म का पालन करो। लेकिन अगर आप सीधी भाषा में नहीं समझते तो गया गांधीवाद। हमें अच्छी भाषा में, क्रांतिकारियों की भाषा में भी समझाना आता है, पर उस भाषा का समय मुझे लगता है कि अब आ गया है। सारा हिंदू समाज अपने लिए खड़े होने के लिए तैयार है, और वो अपनी बहन बेटियों की रक्षा कर सकता है। बिल्कुल 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 प्रतिभा जी, ये बहुत ही समय सूचक चीजें हैं। और अमित गुप्ता जी भी हमारे साथ है। अमित जी, जिस तरह से अभी प्रतिभा जी बता रहे थे कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत फंडिंग होती है और इसका उपयोग इस तरह की एक्टिविटी में होता है, आप क्या मानते हैं कहां से ये फंडिंग होती है और किसके थ्रू ये पूरा जो षड्यंत्र चल रहा है लव जिहाद का, वो चल रहा है? पूरे देश भर की आप बात कर रहे हो और कई किस्से भी आपने देखे होंगे। क्या आपके सामने आ चुका है अब तक इस तरह के किस्सों में? इस तरह के कई किस्से हमारे सामने आए हैं। जैसा कि पहला आपका सवाल था कि इसको फंडिंग करता कौन है, इनके लोकल लीडर्स करते हैं, इनके मौलाना और मौलवी करते हैं। ये खुसराना गिरोह जो ISIS है, इन लोगों के माध्यम से इनका टेररिज्म का फंड, ये लव जिहाद टेररिज्म फैलाने के लिए ये लोग करते हैं। इनको फंड लोकल मस्जिदों से और लोकल क्षेत्रीय मदरसों से मिलता है। वो लोग साइकिल वाले, पंचर बनाने वाले लड़कों को पैसे फंड मुहैया कराते हैं, गाड़ियां मुहैया कराते हैं कि तुम कोचिंग संस्थानों, स्कूल, कोचिंग कॉलेजेस के आगे ये लोग खड़े करते हैं लड़कों को और उनका पीछा करने के लिए बोलते हैं, उनके पीछे लगने के लिए बोलते हैं। उसके लिए इनके पास, इन भिखारियों के पास पैसे भी नहीं होते हैं अच्छे शर्ट और अच्छे कपड़ों के लिए। इनको ये फंड करते हैं, लड़कियों को होटल रेस्टोरेंट ले जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर, जैसा कि प्रतिभा जी ने बताया कि क्षेत्रीय स्तर पर ये जो लोग, चाहे वो एक IAS ऑफिसर हो या एक मुखिया हो, ये सब लोग प्रॉपर तरीके से इन लोगों को फंड करते हैं। उन लोगों के नजर में अगर आप देखेंगे तो हमारे बिहार के अंदर बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग जो मुख्यमंत्री के खासम खास हैं, इन लोगों ने लगातार
ऐसे मामलों में फंडिंग की, उन लोगों को बचाने का प्रयास किया। हम लोगों ने बिहार के अंदर कई सारे ऐसे मामले अरेस्ट करवाने का काम किया। तो ये सारे मामले, ये लोग जिस पद पे भी होते हैं, इन लोगों के लिए पहला टारगेट होता है कि हम अपने इस्लाम के लिए फर्स्ट हैं, उसके बाद ये लोग दूसरी काम को करते हैं। तो ये जो मामला है क्षेत्रीय स्तर पे भी करते हैं, ये लोग इंटरनेशनल लेवल से कनेक्टेड है। अरब कंट्रीज से भी इनको इस चीज के लिए फंडिंग आती है, आईएसआईएस द्वारा फंडिंग आती है। क्षेत्रीय स्तर के जो नेता या अधिकारी होते हैं इनको फाइनेंस करते हैं। ये लोगों के पास तो पंक्चर बनाने से फुर्सत नहीं है, लेकिन क्या है कि ये जाएगा, आप देखेंगे ये जिम और बाकी चीजें करता है, इसके लिए इसके लिए भी इन भिखारियों को पैसा दिया जाता है, और ये लोग जाके जिम में बॉडी बनाएंगे और हमारी युवतियों के आसपास मंडराएंगे। होता क्या है, क्योंकि हमारे समाज में इसका कमी है कि जानकारी नहीं है, मूर्खता है। आपने देखा था दिल्ली का साक्षी मर्डर केस, जिसमें दिखा कि उस लड़की को कैसे चाकुओं से गोद गोद कर मार दिया गया। अगर यही चीजें अगर दूसरे तरफ ये मुड़ा होता केस, तो आज देश भर में आग लगा दिया जाता। बिहार के अंदर एक क्षेत्र में एक ड्राइवर को, ये एक बाइक चोरी वाले को मारा गया था। उसके लिए लोगों ने पूरे देश में तांडव मचाया कि एक इस्लामिक को मारा गया, लेकिन वो चोरी कर रहा था, उसके लिए भी मारा गया। तो इसके लिए ये है, आज आपने किसी को देखा है जो सेकुलरिज्म का चोला पहनते हैं? आपने आज तक देखा कि श्रद्धा, जो साक्षी मर्डर केस जो हुआ, साक्षी की जो हत्या की गई, साक्षी के साथ जो लव जिहाद करके उसको मार दिया गया, तो उस केस में पूरे देश में कोई आंदोलन छिड़ा? कुछ नहीं हुआ, कोई बोलने वाला नहीं है। आप इन चीजों से ध्यान में रख सकते हैं कि ये एक बहुत टारगेटेड प्रोपेगेंडा है जो लगभग 20 सालों से कार्यरत है। ये लोग लगातार कार्यरत हैं, लगातार इन लोगों को फाइनेंस हो रहा है, और फाइनेंस इतना मजबूत फाइनेंस है। उस फाइनेंस का वजह भी है गौमांस का जो सेल होता है उससे पैसा आता है। ये लोग जो लड़कियों को बरगलाते हैं, अभी झारखंड में एक केस आया था हमारे सामने, जिसमें एक लड़की वो सुन ली थी, लव जिहाद के शिकार हुई थी, और उसने रात को 12 बजे के करीब उसको कम्युनिकेट करते सुन लिया कि उसको केरल में बेचने जा रहा था। ये उसका 3.5 लाख रुपए में डील हुआ था। ये लड़की सुन के फिर कैसे भी वहां से निकल के भाग के आई। तो ऐसे क्या है कि बॉडी ऑर्गन्स के लिए भी ये लोग बेचते हैं। इन लड़कियों को दुबई और बाकी जगहों में भी ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। पटना के अंदर ये 28 या 29 मार्च का एक घटना है। एक देवघर की लड़की पटना के अंदर काम कर रही थी। काम करने के दौरान एक ऐसे संस्था में काम कर रही थी जहां पे यही इस्लामिक जिहादी लोग थे, और उन लोगों ने इसको गिरफ्त में लिया हुआ था। वो कैसे भी वहां से बच के भागी, लेकिन वहीं की एक स्टाफ जो महिला कर्मी थी उसके यहाँ घर में रहने लगी। वो महिला कर्मी उसको बेचने का तैयारी कर चुकी थी। वो कैसे भी हमारे संगठन के संपर्क में आई उसके एक फ्रेंड के थ्रू, और तब जाके हम लोगों ने उसको वहां से वापस लाके उसके घर पहुंचवाया। तो ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं समाज में, जिसका मामला पता भी नहीं चलता है, और कई लड़कियां गायब होकर बिक जाती हैं, जैसे कि केरल में हुआ। ऐसे देश भर में यह घटना चल रहा है। अभी सरकार को और हमें इसके लिए जागरूक होना होगा, और समाज में एक अवेयरनेस, यानी स्कूल, कोचिंग, कॉलेज, छोटी बच्चियों से बात करना होगा, क्योंकि इनका टारगेट 13 साल से लेकर 25 से 30 साल की लड़कियां होती हैं, और जो आराम से इनके गिरफ्त में आ जाती हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि ऐसा कुछ है भी क्या। बिल्कुल 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 अमित गुप्ता जी, ये बहुत ही संगीन होता जा रहा है अभी, और ये किस्से काफी ज्यादा बढ़ते भी नजर आ रहे हैं। पहले जैसे आप बता रहे थे कि सामने नहीं आते थे किस्से, लेकिन अब खुलकर सामने आने लग गए हैं, तो ये ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। अमित गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपसे फिर से बात करेंगे। जी 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 बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित गुप्ता जी। आज हमारा समय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। हम फिर से किसी दिन इसी मामले को लेकर के बात करेंगे। प्रतिभा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आप जुड़े, और ये बहुत जरूरी विषय पर आपने जो बात करी। तो ये थे अमित गुप्ता जी और प्रतिभा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से देश भर में ये षड्यंत्र चल रहा है, और किस तरह से जो पूरा मामला है
वो उनके संज्ञान में भी आया है और अब रोकने के लिए उन्होंने अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं। तो आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर कल के दिन मिलेंगे दूसरे विषय के साथ।